Good morning, students. Welcome to the first lecture of Physics Chapter 3, Motion in a Straight Line. Now, this is the real start of the physics actually for class 11. Till now what you have studied is some concepts on units and measurement and dimensional analysis. After that, we have studied some of the mathematical tools which will be extensively used in study of physics in class 11th and 12th. So from today, the real topics of physics will start. Okay, so the first topic is motion in a straight line. Some of the things in this chapter you have already studied in class 9. This is a revision of those concepts and we'll build up some more things on those concepts. Okay, so the chapter is motion in a straight line. So first of all, what strikes you in this title is the word motion. What is motion? And we all know that we are moving and all those things, but actually what is the real definition of motion? Motion is the change in position of an object with respect to time. Change in position of an object with respect to time. Like suppose if I am here, you say suppose there is a reference point, say corner of this board, and I am standing here. If the position of me standing here does not change with respect to that corner point, I am not moving. But if I have changed my position now, so I have moved. If that is a corner point is the 0 point from where you are measuring the position, so I am now moving. So this is what is actually motion. So the continuous change of position with respect to some reference point is called motion. What is reference point? We'll study in detail in the coming topic. So the motion is what we are going to study in this chapter and two more chapters which will come after that. So motion, actually these studies of this physical things, it is a branch which is called mechanics. What is mechanics? So mechanics is the study of an object in a rest or in motion around us. Mechanics क्या है? Mechanics is the study of an object in rest or in motion, है ना? जो हमारे चारों तरफ जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है ना, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का मतलब जिसे हम देख छू सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे जो उसका जो वो रेस्ट में है तो क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके, जब वो मोशन में है तो क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब चीज़ को जो पढ़ने वाला ब्रांच है फिज़िक्स का, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स. सो द डेफिनेशन इज द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द मटीरियल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. अब इसके क्लासिफिकेशन है मैकेनिक्स के, है ना. इसके 3 क्लासिफिकेशन है. एक है स्टैटिक्स, एक है काइनेमेटिक्स और थर्ड वन इज dynamics. So the mechanics, this branch of physics is subdivided into 3 more branches, sub branches: statics, kinematics, dynamics. इसको समझना बहुत आसान है. स्टैटिक्स यानी स्टैटिक का मतलब क्या है? विच इज़ नॉट मूविंग. स्टैटिक का मतलब क्या है? विच इज़ नॉट मूविंग. तो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, एट रेस्ट और in the equilibrium condition. Maybe there are many forces acting on this object but it is not moving, है ना. So ऐसे ब्रांच को हम बोलते हैं स्टैटिक्स. क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिक्स. So branch of mechanics which deals with the study of objects at rest or in equilibrium even when they are under the action of several forces. That means the body which we are studying is not moving, है ना. इट इज़ नॉट हैविंग एनी मोशन, इट इज़ एट रेस्ट. तो ऐसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स को बोलेंगे, ऐसे ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को बोलेंगे स्टैटिक्स. देन काइनेमेटिक्स. काइनेमा मीन्स इन ग्रीक इट इज़ मोशन. काइनेमा मीन्स मोशन. काइनेमा से सिनेमा भी बना है. द वर्ड सिनेमा इज मेड फ्रॉम काइनेमा. सो काइनेमेटिक्स, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
which is in motion, but the reason of motion is not studied. Kinematics में हम क्या करते हैं, it is a study, it is a branch of the mechanics which deals with an object in motion, but it does not study the reason of motion. Kinematics में हम motion तो study करते हैं, लेकिन वो cause of motion है उसको हम study नहीं करते हैं, इसलिए ये kinematics है. अब डायनामिक्स में क्या होता है, डायनामिक्स में हम कॉज ऑफ रीज़न को भी स्टडी करते हैं. सो डायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी नॉट ओनली द मोशन बट ऑल्सो द कॉज ऑफ मोशन. ओके, सो इसमें फोर्स, एनर्जी, वर्क, ये सब चीज़ हम इसमें डायनामिक्स में पढ़ लेते हैं. काइनेमेटिक्स में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन, समझ लो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, ये सब पढ़ते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स divided into statics, kinematics and dynamics. Okay, whenever we are studying these topics, what we assume is we assume an object to be a point object. अब ये point object क्या होता है, what is a point object, है ना. हम जब भी ऐसे चीज़ों को study करते हैं तो we study the object as point object. Now what is a point object, है ना. The concept of point object is if the position of an object is much larger than the size of the object, then it is called point object. थोड़ा सा इसको समझेंगे. मैंने क्या बोला, if the position or the movement, जो change of the position of the object is much larger, बहुत ज़्यादा बड़ा है उस ऑब्जेक्ट के साइज से, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे. डेफिनेशन इज इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय अ डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मे बी रिगार्डेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, है ना. फॉर एग्जाम्पल एन एंट, चींटी ना. चींटी को हम हाथ में लेंगे तो इट इज़ नॉट अ पॉइंट, है ना. वो तो एक ऑब्जेक्ट है, दिखेगा आपको इतना बड़ा चींटी है. बट उस चींटी को अगर हमें इस ब्लैक बोर्ड में कहीं पे रख दिया एंड इट इज़ मूविंग इन द होल ब्लैक बोर्ड, इट्स मोशन इज इन द होल ब्लैक बोर्ड. तो चींटी यहाँ से स्टार्ट किया, उसने मूव किया, पूरा ये किया, इतने बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर दिया एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में, है ना. शायद 1 मिनट में या 2 मिनट में या 10 मिनट में. तो ये जो ऑब्जेक्ट यानी ये चींटी जो है, जो मूव कर रहे हैं इतने बड़े बोर्ड पे, इसका साइज मैटर नहीं कर रहा है. व्हाट वी आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन द साइज, व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन द पाथ फॉलोड बाय दिस एंट. तो व्हाट विल कॉल एंट विल कॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिकॉज उसका और भी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इट इज़ नॉट अफेक्टिंग आवर स्टडी. जो दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर नॉट अफेक्टिंग आवर स्टडी. सिमिलरली मैं बोलता हूँ कि अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे बोल सकते हैं. दिस होल अर्थ, कैन इट बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? अगर हम अभी देख रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, सो वास्ट कि हम जहाँ खड़े हैं वी कैन कंसिडर आवर सेल्फ एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन दिस अर्थ. लेकिन अगर मोशन ऑफ अर्थ को अगर स्टडी करना है विथ रिस्पेक्ट टू द सोलर सिस्टम, सन के अराउंड में जो अर्थ का मूवमेंट है ना, तो उसको स्टडी करना है, देन वी कैन कंसिडर, सपोज आई विल ड्रॉ a very small diagram. Suppose I draw, if this is the size of sun, if this is in our blackboard, if this is the size of the sun, first of all, if the distance of our earth is very far, so I will draw it here, and the size of the earth is very small than sun, so it can be just denoted by this point, and its motion around the sun स्टडीड इन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स, है ना. इसको एस्ट्रोफिज़िक्स में इसके मोशन को करते हैं, तो इसका साइज़ शेप मैटर नहीं करता, है ना. अब इस स्टडीज़ में अर्थ का साइज़ शेप मैटर नहीं करता. व्हाट मैटर्स इज इट्स पाथ अराउंड द सन. सो व्हाट वी कैन कंसिडर दिस अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हेन वी आर स्टडीइंग द सन और द सोलर सिस्टम. ओके, so the earth may be considered as point object studying the motion around the sun.
सिमिलरली मैं और प्रैक्टिकल बोलता हूँ कि सपोज देयर इज अ ट्रेन, बहुत लंबा ट्रेन है, सपोज इट्स अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 500 मीटर लंबा ट्रेन है, मालगाड़ी है, ओके, और वो जा रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे है, विच इज़ अराउंड 500 किलोमीटर्स apart. Point A to point B is 500 kilometers apart. So if I want to describe the train, what I can describe it by a point only. I can describe it by point only, है ना, क्योंकि length of the train is much smaller than the distance between these 2 points. Okay, so I can किसी भी point of time पे हम उसको अगर denote करेंगे तो एक point से denote कर सकते हैं. So this is the concept of point object. ये फिजिक्स में काफ़ी सारे टाइम पे ये यूज़ होगा. ओके, और फिजिक्स में और जो चीज़ कई बार हम यूज़ करेंगे वो होगा रेफरेंस पॉइंट एंड फ्रेम ऑफ reference. Okay, what is very important to study here is when we are talking about position of an object, how to describe a position, है ना. अगर हम कभी बोल रहे हैं कि पोजीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट वी आर स्टडिंग इज द पोजीशन एंड द चेंज इन पोजीशन. मोशन इज चेंज इन पोजीशन. जब हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. सो what we use actually, what you have already studied, we use rectangular Cartesian coordinate system to describe the position of an object. अब ये rectangular Cartesian system क्या होता है? What we study is we study 3 basic axes, है ना, x axis, y axis, z axis, which are mutually perpendicular to each other. ये आपने मैथ्स में पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा है आपने. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब बोलते हैं तो 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ये सब चीज़ पढ़ा है. सो यूजुअली व्हेन वी ट्राई टू specify the position, we use this coordinate system. So in order to specify position, we need to use a reference point and a set of axes. It is convenient to choose a rectangular coordinate system consisting of 3 mutually perpendicular axes labeled as x, y and z. Now for the reason of drawing, what I can draw is 2-dimensional objects. 3-dimensional objects तो मैं इस बोर्ड में बना नहीं सकता, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको मालूम है. सपोज हॉरिजॉन्टली इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वी कंसिडर दिस एज एक्स एक्सिस. इसको क्या करते हैं, मानते हैं हम एक्स एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस को हम क्या मानते हैं, वाई एक्सिस, एंड दिस इज 90 डिग्री, मीन्स दिस वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. लेकिन ड्राइंग में जब हम बनाते हैं जेड एक्सिस को तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 45 डिग्री एंगल में हम यहाँ से एक एक्सिस बनाते हैं विच इज़ जेड एक्सिस. नाउ यू हैव टू विजुअलाइज, आपको ये कल्पना करनी है कि दिस ऑल्सो इज परपेंडिकुलर टू दिस 2 एक्सिस, है ना. इसको हम अपने उंगलियों से भी उसको विजुअलाइज कर सकते हैं. सपोज आपने उंगली ऐसे रखी, अब आप ये तीनों उंगली आप देखेंगे, तीनों उंगली अगर मैं इसके हिसाब से बनाता हूँ, है ना, तो मैंने ऐसे रखा, तो दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis, and what the finger pointing towards you is z axis. You can visualize this. Okay, so this is right hand thumb rule. Right hand thumb rule भी बोलते हैं इसको, वो आपको आगे कभी काम आएगा. So what is this? This is y axis, this is x axis and this is z axis. अब इसका डायरेक्शन हम कन्वेंशन में क्या लेते हैं, ये towards right it is positive and towards left it is negative in x axis. X axis में towards right is positive, towards left is negative. For y axis upwards is positive and downwards is negative. And for z axis towards you is positive and away from you is negative. For z axis
टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ है तो पॉजिटिव, आपसे दूर है तो नेगेटिव. सो दिस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. ये फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट में यूज़ होगा, है ना. सो दिस इज नाउ व्हेन आई सेड दैट दीज आर 3 एक्सेस, दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट विच इज़ कॉल्ड, यहाँ पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको मैं बोलता हूँ ओरिजिन. क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन. मैं नहीं, सभी बोलते हैं, है ना. सो व्हाट इज इट? दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these 3 axes is called origin. The coordinate of origin here is 0 0 0. That means x coordinate x axis the value is 0, for y axis the value is 0, and for z axis the value is 0. And this serves as my reference point. This origin serves as my reference point. Okay. अब इसमें अगर मुझे किसी एक पॉइंट को लोकेट करना है, सपोज दिस अ पॉइंट P, इसको हमको लोकेट करना है, तो दिस पॉइंट विल बी हैविंग, अब इस पॉइंट से मैं सारे परपेंडिकुलर सारे एक्सेस में ड्रॉप कर दूं, है ना. इस पॉइंट से सारे एक्सेस में परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो दैट विल बी वैल्यू ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग x, y and z. Suppose I drop here a perpendicular in x axis, so I'll write it x1, a drop a perpendicular in y axis, say suppose it is y1, and I will drop here. I cannot show it very directly, but I'll just try to drop here. Okay, so this is, sorry, this is wrong. I have dropped a perpendicular like this, suppose, and this value is z1. What I can write here, the position of P is x1, y1, z1. So I have now located this point P with reference to the origin. इस origin के reference में मैंने इसका location दिखा दिया कि x1, y1, z1 है. और अब ये जब move करेगा तो उस मूवमेंट को हम स्टडी करेंगे, और फिर ये हम बता सकते हैं कि इज़ इट अ 1 डायमेंशनल मोशन और अ 2 डायमेंशनल मोशन और अ 3 डायमेंशनल मोशन विच विल स्टडी. सो दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट एंड दिस आर द एक्सेस सिस्टम. अगर इस पॉइंट में मैं एक क्लॉक भी रख दूँ, ओरिजिन के साथ में एक क्लॉक भी रख दूँ, इसमें, ताकि ओरिजिन से हम टाइम मेजरमेंट भी कर सकें. What we can do is we can also measure the time, है ना. तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना. अभी तक टाइम मेजर नहीं हो रहा था, अगर इसमें टाइम एक क्लॉक भी रख देता हूँ ताकि टाइम भी मेजरमेंट हो जाए, तो दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो द कोऑर्डिनेट सिस्टम अलॉन्ग विथ अ क्लॉक constitutes a frame of reference. Okay. So now we'll discuss about the concept of rest and motion. I told you that if I am not moving, I am at rest, and if I am moving with respect to a reference point, I am in motion. So what is rest? The simple definition is, if an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to the surrounding. अगर मैं अपने सराउंडिंग से अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ तो आई एम एट रेस्ट. ओके. सपोज देयर इज अ बुक लाइंग हियर इन द टेबल. आई विल से द बुक इज एट रेस्ट, द टेबल इज एट रेस्ट. This duster, the chalks, the camera itself is at rest because camera is not moving. I may move, but the camera itself is not moving. So this is the concept, that if the position of the object is not changing with respect to its surrounding, the object is said to be at rest. So what is motion? Simple है ना. If the position of the object is changing with respect to its surrounding, the object is said to be in motion. Like I am in motion right now, because now you can see me moving from this point to this point, but your frame of reference is static here, that camera is static, and I am moving. So these are the concept of rest and motion. But do you think this I am at absolute rest, यानी मैं मूव कर ही नहीं रहा हूँ किसी भी रेफरेंस में?
थिंक अबाउट इट, क्या मैं कंप्लीट एब्सोल्यूट रेस्ट में हूँ? नो, आई एम नॉट एट रेस्ट राइट नाउ, है ना। अगर इस सराउंडिंग के हिसाब से बोलेंगे तो आई एम एट रेस्ट, बट इन द लैंड विच आई एम स्टैंडिंग, द अर्थ itself is not at rest, it is moving around the sun. You can appreciate this, and the earth itself is not at rest, it is moving around the sun, also it is rotating in its own axis. So there's nothing like absolute a body and absolute rest है, क्योंकि यूनिवर्स में ऐसा कोई चीज़ अभी भी नहीं है जो एकदम रुका हुआ है पूरे यूनिवर्स में. द सन इट सेल्फ इज मूविंग अराउंड द गैलेक्सी इट सेल्फ आर मूविंग अराउंड some system. Okay, so there's nothing called absolute rest. Or we can also see if you are traveling in a train में आप बोगे में बैठे हैं, उस सीट में बैठे हैं, तो सीट में आपके जो बगल में बैठा है वो देख सकता है, आप उसको देख सकते हो कि वो मूव नहीं कर रहा है, वो तो आपके साथ ही बैठा है, कहीं आपसे दूर नहीं जा रहा है, आपके पास नहीं आ रहा है, जस्ट बगल में बैठा है. सो व्हाट यू कैन कंसिडर ही इज़ एट रेस्ट. किसके रिस्पेक्ट में? आपके रिस्पेक्ट में. आप देखने वाले हो, है ना, आप एक रेफरेंस पॉइंट हो, आपके रिस्पेक्ट में वो जो व्यक्ति है वो रेस्ट में है. इट इज़ नॉट मूव, ही इज़ नॉट मूविंग. बट द सेम पर्सन, इफ द सेम पर्सन इज सीन फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ आउटसाइड द ट्रेन एंड द ट्रेन इज़ मूविंग, है ना, कोई बाहर से देख रहा है, आपको देख रहा है या उस व्यक्ति को देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा, वो तो जा रहा है. क्यों जा रहा है? क्योंकि ट्रेन जा रही है और ट्रेन के साथ आप भी जा रहे हो. तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप लोग ट्रेन के अंदर बैठे हो तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो, लेकिन आप बाहर के व्यक्ति जो आपको देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में आप यू आर मूविंग. सो इट इज़ अ रिलेटिव टर्म. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म. इट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट. किस रेफरेंस पॉइंट से आप मेजर कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. तो अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर्स, but he is in motion with respect to the objects outside the train. Thus, an object may be at rest with respect to one object, and at the same time, it may be in motion with respect to another object. Hence, rest and motion are relative terms. They are relative terms. Now you have understood what is the concept of rest, what is the concept of motion, or the mechanic, what is mechanics, what is statics, what is dynamics. So since we are studying about motion, we'll try to define motions in one dimension, motion in two dimension, motion in three dimensions. What are dimensions? Simply put, dimensions are the axis, frame of reference, है ना. This is x, this is y, this is z. If I say these are axis, and we'll say ये एक डायमेंशन है, ये दूसरा डायमेंशन है, ये तीसरा डायमेंशन है. Now when we say that an object is moving in one dimension only, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि तो हम ये चीज़ ले सकते हैं किसी भी एक कोऑर्डिनेट को. सपोज अभी हम सीधे करें कि ये ओरिजिन है और अभी हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं एक्स एक्सिस को. सपोज दिस इज एक्स एक्सिस. सो इफ द पोजीशन इज चेंजिंग ओनली इन वन एक्सिस, बाकी दो एक्सिस में उसके पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, द वैल्यू ऑफ द वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स आर नॉट चेंजिंग, बट ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट में वो चेंज हो रहा है, तो देन वी विल से दैट द बॉडी इज मूविंग इन वन डायमेंशन ओनली. इट इज हैविंग अ वन डायमेंशन मोशन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ओरिजिन, देयर इज अ बॉडी एट पॉइंट ए हियर, then at some interval of time it moves to point B. Suppose the distance from origin to this is say x1, and it's after the motion its distance becomes x2. So what we can see here, the body has moved from A to B, that means its position has changed from x1 to x2. But its y coordinate has not changed, its z coordinate has not changed. So this type of motion is called a motion in one dimension, or we can also call it a linear motion because it is moving in a line. जिसको क्या बोल सकते हैं? Linear motion. It is also given another name, rectilinear motion. इसको क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन या मोशन इन वन डायमेंशन. अभी मैंने x लिया तो इसका मतलब है क्या सिर्फ x में होगा, y में भी हो सकता है. अगर मैं उसको ऐसा ड्रॉ कर दिया, सपोज देयर इज अ पॉइंट P
and there is a point Q. The body is moving from say P, which is y1, to Q, which is y2. It is not moving in x direction, it is just moving along this axis. So this motion will be again the motion in one dimension. Okay. एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल ले लें तो इस चौक को अगर मैं ऐसा ऊपर फेंकता हूँ तो अगर वो सीधे ऊपर गया और सीधे नीचे आया तो दैट मीन्स इट्स y वैल्यू इज़ ओनली चेंजिंग. इसका क्या चेंज हो रहा है? y वैल्यू. सो दैट इज़ अ मोशन इन वन डायमेंशन. और जैसे परफेक्टली स्ट्रेट ट्रैक, रेलवे ट्रैक जो है एकदम स्ट्रेट है, उसमें अगर ट्रेन चल रही है तो वो भी मोशन इन वन डायमेंशन ही होगा. सो हियर द बॉडी इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. द बॉडी इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना. यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, इधर पे भी वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है. तो ऐसे टाइप के मूवमेंट को हमने क्या बोला था मोशन को? लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन. नाउ दिस इज द motion in one dimension. This is motion in one dimension. Okay, now we'll study motion in two dimensions. Motion in two dimensions. Now what I have drawn here is I have drawn two axes, x axis and y axis. This is y axis. Now suppose a body here is at point P. I'll consider only two axes here. I'm not considering z axis because it is not moving in z axis. What is motion in two dimension? If only two of the three axes change with respect to time. Okay, so if the two of the three coordinates specifying the position of an object change with respect to time, this is called the motion in two dimension. Suppose this is point P and it changes and goes to point Q. The dimension, the coordinates of P is x1 and y1. The coordinates of Q is x2 and y2. So what has changed? Both x and y. The body has moved say from x1 to x2. If I drop a perpendicular here, the body has moved from x1 to x2 and also from y1 to y2. So there's a change is simultaneously happening in two dimension. The change is simultaneously happening. एक ही समय पे ये दो डायमेंशन पे वो चेंज हो रहा है और ऐसा करते करते वो इस पॉइंट पे पहुंचा जहाँ उसकी कोऑर्डिनेट हो गई x2 एंड y2. तो ऐसे मोशन को बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन. हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया जो सन के चारों तरफ अर्थ मूव करता है. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोशन इन टू डायमेंशन. दैट मीन्स अगर ये ऐसा मूव कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है. सो दिस इज द मोशन इन टू डायमेंशन. और अ प्रोजेक्टाइल व्हेन अ बॉल इज थ्रोन, किसी बॉल को हम अगर हम थ्रो करते हैं तो वो ऊपर भी जाता है और ग्रेविटी के कारण नीचे आता है. तो ऊपर नीचे वाला तो मूवमेंट हो गया, यानी वाई डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया. लेकिन यहाँ से मैं अगर फेंका और वहाँ पे तो ये एक्स डायरेक्शन में भी दूसरे बच्चे ने अगर कैच किया तो यहाँ से वहाँ तक का भी एक डिस्टेंस कवर किया प्लस हाइट का भी डिस्टेंस कवर किया. सो दैट प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए बॉल, सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, आई थ्रो इट लाइक दिस, द बॉल गोज हियर एंड अनदर बॉय कैचेस हियर. सो दिस, ये बॉल का जो पाथ है कैसा, ये एक पैराबोलिक कर्व को डिस्क्राइब कर रहा है. सो इट इज़ मूविंग इन एक्स डायरेक्शन ऑल्सो एंड वाई डायरेक्शन ऑल्सो. सो दिस इज़ द मोशन इन टू डायमेंशन. सो नाउ द लास्ट थिंग इन दिस इज़ द मोशन इन थ्री डायमेंशन. अब ये बहुत सिंपल है समझना कि भाई अगर ये पॉइंट जो है वो तीनों एक्सेस में चेंज हो रहा है, अगर ये पॉइंट जो है वो तीनों एक्सेस में चेंज हो रहा है, इसका जो पोजीशन है वो तीनों एक्सेस में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट विल बी कॉल्ड द मोशन इन थ्री डायमेंशन. इफ आई विल जस्ट ड्रॉ इट अगेन एंड इट इज़ मोर ऑफ विजुअलाइजेशन. यूजुअली मैनी मोशंस आर द मोशन इन थ्री डायमेंशन ओनली, है ना. एक्स हो गया, वाई हो गया,
z हो गया, अगर एक पॉइंट है ये p x1 y1 z1, अगर ये यहाँ से मूव होके किसी और पॉइंट में गया x2 y2 z2, इसके जो चेंजेस हुए तीनों ही एक्सेस में हुए, तो दिस विल बी मोशन इन 3 डायमेंशन. सो इन दिस मोशन द बॉडी मूव्स ऑन ए स्पेस, है ना, ये बॉडी मूव्स इन अ स्पेस. 2 डायमेंशन में द बॉडी मूव्स इन अ प्लेन. 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन में बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. 1 डायमेंशन में बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. 2 डायमेंशन में द बॉडी मूव्स इन अ प्लेन, अलॉन्ग द प्लेन. एंड 3 डायमेंशन द बॉडी मूव्स अलॉन्ग द स्पेस, इन बिटवीन द स्पेस, है ना. अभी ये इसका एग्जांपल मैं कर देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर फ्लाइंग अ काइट इन अ विंडी डे. बहुत हवा चल रही है, उस पर आप काइट उड़ा रहे हो, तो काइट का मोशन क्या रहेगा? इट विल बी गोइंग अप एंड डाउन, इट विल बी मूविंग दिस लाइक दिस ऑल्सो, एंड इट कैन मूव अवे फ्रॉम यू और टूवर्ड्स यू. तो सारे काइंड ऑफ मोशन तो हो सकते हैं इसमें, है ना. सपोज अ प्लेयर इज़ प्लेइंग अ फुटबॉल. फुटबॉल में वो ग्राउंड में दौड़ रहा है, लेकिन हेड करने के लिए वो उछल भी रहा है, तो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, उस डायरेक्शन में भी जा रहा है. तो ये जो उसका मोशन होगा वो तो 3 डायमेंशनल मोशन हुआ, है ना. जनरली जो एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन के मोशन होते हैं, ये सब वो 3 डायमेंशनल मोशन होते हैं. तो इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज़ द मोशन इन 3 डायमेंशन. व्हेन इट इज़ मूविंग अलॉन्ग ऑल द 3 एक्सेस, its position is changing along all the 3 axes, that motion will be called the motion in 3 dimension. So this is a very basic concept. ये आपको फिजिक्स में सब जगह याद रखना होगा. तो आई विल बी स्टार्टिंग स्लोली, ये इसको आप अच्छे से समझिए. एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस, है ना, पाथ फॉलोड, एंड देन विल स्लोली गो इनटू स्पीड, वेलोसिटी, acceleration. Okay, thank you.